جب وجدان افق کی بات پر غور کرنے لگا تھا کہ ڈور ناک ہوا تھا۔ گڈ ایوننگ سر، آپ کی کافی۔ ڈور کھولنے پر سامنے کھڑی ہوٹل کیٹرنگ والی خوبصورت لڑکی نے انگلش لب و لہجے میں اسے مارننگ وش کرتے کافی کا مگ بڑھایا تھا۔ ہے جس کے ہاتھ میں پتھر اسے گما بھی نہیں، کہ فکر آئینہ جسم و جاں یہاں بھی نہیں۔ جو بات تیری نظر میں ہے اور میرے دل میں، اگر زباں پہ نہ آئے تو رائیگاں بھی نہیں۔ اب اس نے وقت نکالا ہے جان حال سننے کو، بیاں کرنے کو، جب کوئی داستاں بھی نہیں۔ وہ دل سے سرسری گرا، کرم کیا اس نے کہ رہنے کا متحمل تو یہ مقام بھی نہیں۔ زمین پیروں سے نکلی تو یہ ہوا معلوم، ہمارے سر پہ کئی دن سے آسماں بھی نہیں۔ سفر میں چلتے نہیں عام زندگی کے اصول، وہ ہم قدم ہے میرا جو مزاج داں بھی نہیں۔ نہیں پسند کوئی بے توجیہی اس کو، اور اپنے چاہنے والوں پہ مہرباں بھی نہیں۔ میرے ہی گھر میں اندھیرا نہیں ہے صرف جمال، کوئی چراغ فروزاں کسی کے ہاں بھی نہیں۔ افق، اگر اس وقت یہ تمہیں باہر جانے کا کہے تو کسی طرح بھی انکار کر دو اور اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا تم ابھی۔ ڈنر سے فارغ ہوتے ہی وجدان اپنا لیپ ٹاپ آن کرتا مصروف سے انداز میں کاؤچ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا کہ گم سم بیٹھی افق اسے ہی بغور دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے ہاتھ کے نیچے رکھا اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا، جس پر عادل کا میسج پڑھتی افق نے وجدان کو کام میں مصروف دیکھتے رپلائی دیا تھا، بھائی وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، پچھلے آدھے گھنٹے سے لیپ ٹاپ میں ہی بزی ہے، اور رہی کہیں جانے کی بات تو وہ جب تک وہ فری ہوگا ہم کافی لیٹ ہو جائیں گے۔ خاموشی سے ایک نظر وجدان کو اور ایک نظر موبائل اسکرین کو دیکھتی افق نے میسج ٹائپ کیا تھا، جب اچانک ہی وجدان نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا تھا اور افق کو دیکھا تھا جو اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ بظاہر اپنے کام میں مصروف وجدان افق کی چلتی سانسوں پر نظر رکھے ہوئے تھا، تبھی وہ دبے پاؤں چلتا افق کے سر پر آن پہنچا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ وجدان کا سایہ نمودار ہوتے دیکھ کر افق نے موبائل بند کرتے ہوئے سامنے دیکھا تھا، جہاں وجدان آنکھوں میں سوال لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھابی تھی اس وقت؟ وجدان کے سوال کرنے پر افق پل بھر کو ڈگمگائی تھی، پر جلدی خود کو کمپوز کرتی مسکرا کر وجدان کو دیکھتی گویا ہوئی تھی، جس پر وجدان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، وہ پوچھ رہی تھی خیر سے پہنچ گئی یا نہیں۔ وجدان کی مشکوک نظروں میں دیکھتی افق نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، جس پر وجدان مسکرا کر بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، چلو باہر چلتے ہیں، گھوم کر آتے ہیں۔ نہیں، کیا نہیں؟ افق کی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے وجدان نے اسے باہر چلنے کا کہا تھا، جس پر افق ایک دم سے اپنی جگہ سے اچھلتی ہوئی بولی تھی، اور افق کے اس ری ایکشن پر وجدان نے آئی برو چکائی تھی۔ میرا مطلب نہیں، ابھی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ مجھے نیند آ رہی ہے وجدان۔ وجدان کی تیوری چڑھتے دیکھ افق اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتی بیڈ پر لیٹ کر بلینکٹ اوڑھ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے افق؟ کیوں ہمارے ہنی مون کی بینڈ بجا رہی ہو سو سو کر؟ لوگ گھومتے ہیں اور تمہاری نیند پوری نہیں ہو رہی، ابھی تو سو کر اٹھی تھی تم۔ افق کے اوپر سے بلینکٹ کھینچتے وجدان نے بدمزہ ہوتے اسے گھورا تھا، جس پر وہ سختی سے آنکھیں بند کرتے سونے لگی تھی۔ افق، جواب دو مجھے، کیا مسئلہ ہے؟ افق کی آنکھوں کو دیکھتے وجدان نے اب کی بار سخت لہجہ اپناتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر افق ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھتی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں وجدان کیا ہے، پر میرا دل چاہ رہا ہے ساری زندگی کے لیے سو جاؤں اور کبھی نہ اٹھوں۔ وجدان کو غصے سے لال ہوئے چہرے کو دیکھ کر افق اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اپنے دل کا حال دبے لفظوں میں اسے بتاتی ہوئی مسکرائی تھی، اور وہیں وجدان کی سرخ آنکھوں میں غصے کی جگہ فکر آئی تھی۔ جب آگے بڑھتے وجدان نے افق کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، ایسی باتیں نہیں کرتے افق، ابھی تو ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہے۔ افق کی آنکھوں میں دیکھتے وجدان نے ڈر سے کہا تھا، جس پر افق وجدان کے اس طرح ریئیکٹ کرنے پر اسے بغور دیکھنے لگی تھی۔ آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی وجدان۔ وجدان کو دیکھتی افق کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، جسے دور دھکیلتی وہ مسکرائی تھی، ٹھیک ہے پھر مجھے سونے دیں، ابھی کے لیے صبح چلیں گے۔ وجدان کی محبت لٹاتی آنکھوں سے نگاہ موڑتی افق نے بلینکٹ اس کے ہاتھ سے لیتے واپس اوڑھا تھا، اور اب کی بار وجدان اسے روک بھی نہیں سکا تھا۔ بہت مشکل ہے تم سے دور جانا، حتیٰ کہ تمہیں خود سے اس دنیا کو دور کرنا۔ کاش میں وعدے سے نہ بندھا ہوتا افق، تو میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہ جانے دیتا، تمہیں سب سے چھپا کر اپنے پاس بہت پاس رکھ لیتا۔ خود کو پوری طرح بلینکٹ سے کور کیے افق کو دیکھتا وجدان اپنے کیے وعدے کی آڑ میں دل میں سوچتا اپنی بے بسی پر رویا تھا۔ یہی حال بلینکٹ میں لپٹی افق کا تھا، جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کی آواز اس بے وفا شخص سے چھپا رہی تھی۔ کسی کے ساتھ جینا، کسی کے ساتھ جینے کی خواہش کرنا الگ، اور کسی کی عادت ہو جانا اور کسی کی چاہ ہو جانا الگ، اور کسی کو چاہ کر چھوڑ جانا وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان مرنے لگتا ہے اس چاہے جانے والے شخص کی یادوں میں کھو کر، اس کی باتوں کو سوچ کر، اس کے ساتھ بتائے لمحوں کو سوچ کر، اور
मैं यही करना चाहता हूँ उफक, अपने साथ में खुद को तुम्हारी यादों में बहाकर तुम्हारे साथ ही मर जाना चाहता हूँ। किसी को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी जिंदगी में पहली बार किसी को मारने का ख्याल मेरे वजूद में कपकपी तारी कर रहा है। जानती हो, वो किसी कोई और नहीं, मेरी वाहद मोहब्बत है, जिसको देखकर मेरा दिल जिंदगी में पहली बार इतने जोर से धड़का था, जिसके कह के मुझे बार बार अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे थे, और मैं उसे अपने गुस्से का नाम देकर टाल गया था। हर मुलाकात पर मुझे तुमसे नई तरह से मोहब्बत, तुम्हारी नम आंखों से, कभी तुम्हारी बातों, तुम्हारी मुस्कुराहट से, यहाँ तक कि तुम्हारे इस बेढंगे कपड़ों से भी मुझे मोहब्बत हो गई, जिन्हें तुमने मेरी मोहब्बत खुद से अलग कर दिया और खुद को मेरे मुताबिक बना लिया। पर अफसोस, मैं खुद को तुम्हारे मुताबिक नहीं बना सका। एक बात का यकीन है मुझे, कल के बाद तुम्हारा यकीन ही नहीं, तुम टूट जाओगी और कहोगी कि हर मर्द बेवफा होता है, पर मर्द भी बावफा होते हैं। उफक, हाँ, मैं तुमसे बेवफाई कर जाऊंगा, पर मैं अपनी मॉम से वफा कर जाऊंगा। एक औरत ही नहीं बंधी होती रिश्तों से उलझी डोर से, अपनों की मोहब्बत की डोर से मर्द भी बंधा होता है। पर मैं अपने रब्बे करीम से ये दुआ करता हूँ कि खुदावंदे आलम किसी को मेरी तरह मजबूर और बेबस ना करे कि दिल में से और धड़कन में से किसी एक को चुना जाए। मैंने तो चुन लिया उफक, पर हर कोई नहीं चुन सकेगा। माँ आपको अपने दिल को और मोहब्बत, जो खुदा का पसंदीदा बंदों के लिए तोहफा होती है, यानी धड़कन, दिल मोहब्बत करना सिखाता है और धड़कन उसे जीने की वजह होती है। उफक अपनी धड़कन को खुद से अलग करने का फैसला किया है, मतलब मैंने दिल को चुना है और धड़कन के बगैर दिल कुछ भी नहीं है। रूम की स्लाइडिंग विंडो में खड़ा हुआ विजदान अपने दिल में उफक से महवे गुफ्तगू था, जो उससे छुपी अपने आंसुओं को छुपाती बिस्तर में दबकी हुई थी। वक्फे वक्फे से उसे देखते विजदान की आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। जब आसमान की तरफ देखते विजदान ने खुद पर जब्त पाने की कोशिश की थी, जो शायद आज रात नामुमकिन था, तब अपने आंसू ना रुकते देखकर विजदान ने उसे अपनी मर्जी करने दी थी, और वहीं जमीन पर बैठकर वो जी भर कर रोया था। दश्त में अश्कों से एक बादल बनाना इश्क है, याद रहना, याद करना, याद आना इश्क है। कैफ से सरशार रहना और कहना अल अहद, जख्मे दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराना इश्क है। हिजर की परछाई भी इस आस्था से दूर हो, हाँ, उसे इस ही की खातिर भूल जाना इश्क है। तंदिए बादे अजियत दुश्मने जा हो, मगर खाके हस्ती में चिरागे दिल जलाना इश्क है। अपनी आंखों को हथेली पर सजाकर रात भर राह घर की नन्ही चिड़िया को दिखाना इश्क है। ऐन शीन और काफ माथे पर उभर कर आ गया है, हाय दिल मेरा, कि ये फिर भी ना माना इश्क है। अहद हाजिर में गुजारा हो गया मुश्किल मेरा, मैं पुराना दिल से और मुझसे पुराना इश्क है। एक लम्हे की खता पर चश्मे शबे बेदार का, रोए जाना रोए जाना रोए जाना इश्क है। अपने कंधों पर मुसल्लत बारे गम के बावजूद आदमी का दूसरों के गम उठाना इश्क है। साइम नगमा तराज इकसर उल्फते जान ले, मेरी गजलों का तेरे होंठों तक आना इश्क है। कहाँ लेकर जा रहे हैं विजदान? उफक की आंखों पर हाथ रखकर चलता विजदान उसे काफी दूर तक ले आया था। जब थकन से चूर होती उफक ने दुहाई दी थी, बस समझो पहुंच गए। सरप्राइज! उफक के कान में सरगोशी करते विजदान ने उसकी आंखों से हाथ हटाते बुलंद आवाज में कहा था, जब अपने सामने बहते सिडनी के खूबसूरत समंदर के मनाजर को देखकर उफक हैरान हुई थी। वाओ! बहते समंदर को देखकर उफक की आंखों में चमक आई थी। यहाँ कोई नहीं है, क्यों? खुशी से इधर उधर नजर दौड़ाती बीच पर किसी को मौजूद ना पाती उफक ने वजदान को देखते हुए पूछा था। क्योंकि आज का दिन हमारा है, तो ये जगह भी सिर्फ हमारी है उफक डार्लिंग। उफक की नाक खींचते वजदान ने शरारत से कहा था, जिस पर उफक उसके इरादे को समझती फीका सा मुस्कुराई थी। चलो वहां तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उफक को सोच में डूबे खुद से ही मुस्कुरा कर देखते वजदान उसका हाथ पकड़ता उसे अपने साथ खींच कर ले गया था। है जिसके हाथ में पत्थर उसे गुमा भी नहीं है, कि फिक्रे आईना जिस्मो जा यहाँ भी नहीं। जो बात तेरी नजर में है और मेरे दिल में, अगर जुबान पे ना आए तो रायगा भी नहीं। अब उसने वक्त निकाला है हाल सुनने को, बयां करने को जब कोई दास्तां भी नहीं। वो दिल से सरसरी गुजरा, करम किया उसने कि रहने का मुतहम्मल तो ये मकाम भी नहीं। जमीन पैरों से निकली तो ये हुआ मालूम, हमारे सर पे कई दिन से आसमां भी नहीं। सफर में चलते नहीं आम जिंदगी के असूल, वो हम कदम है मेरा जो मिजाज ता भी नहीं पसंद कोई बेतोजी ही उसको, और अपने चाहने वालों पे मेहरबान भी नहीं। मेरे ही घर में अंधेरा नहीं है सिर्फ जमाल, कोई चिरागे फिरोजा किसी के हाँ भी नहीं।
کتنا خوبصورت موت کا منظر ہے کہ میرے محبوب نے کیا خوب تیاری کی ہے مجھ نازک صنف مزاج کو دنیا سے رخصت کرنے کی۔ وجدان کے پیچھے چلتی افق نے خالی بیچ سمندر کے کنارے پر لٹکے ہوئے جھولے کو دیکھا تھا اور اسے اب وجدان کی ساری تیاری سمجھ آئی تھی۔ واو، کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ وجدان، مجھے جھولے پر بیٹھنا ہے۔ وجدان سے ہاتھ چھڑواتی افق جھولے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی تھی، جب وجدان نے ایک ہی جست میں اس کا ہاتھ پکڑتے اسے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، پہلے وہاں پر ریت کا محل بنائیں گے، پھر کھانا کھائیں گے، پھر اس جھولے پر بیٹھنا۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ افق کی بے قراری پر وجدان کی جان لبوں پر آئی تھی، تبھی وہ افق کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر افق وجدان کو اپنی فکر کرتے دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہوئی تھی۔ ایک امید پھر سے اجاگر ہوئی تھی کہ وجدان اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، تبھی وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑتی اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ ویسے وجدان، ریت کے محل تو ٹوٹ جاتے ہیں، کیوں نہ آج ہم محبت کا محل بنائیں جو کبھی نہ ٹوٹے۔ وجدان کے ساتھ چلتی اس کے بازو تک آتی افق نے اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، جس پر وجدان نے تکلیف سے اپنے لب بھینچے تھے۔ یہیں ڈوبے دن میرے، یہیں ہوتے ہیں سویرے، یہی مرنا اور جینا۔ افق کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وجدان نے وہاں رکھے میوزک پلیئر میں سانگ پلے کیا تھا، جس پر افق نے وجدان کو دیکھتے اپنی محبت کا ریت کا محل بنانا شروع کیا تھا۔ یہیں ڈوبے دن میرے، یہیں ہوتے ہیں سویرے، یہی مرنا اور جینا۔ تیری گلیاں 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 تیری گلیاں، مجھ کو بھاویں گلیاں تیری گلیاں، تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں، یوں ہی تڑپاویں گلیاں تیری گلیاں۔ وجدان، مجھے الرجی ہے ریت اور مٹی سے۔ افق کا ساتھ دیتے وجدان نے ہنستی مسکراتی افق کو چہرہ دیکھتے ہوئے ریت کا ہاتھ افق کے چہرے پر رکھا تھا، جس پر وہ بچوں کی طرح منہ کے زاویے بگاڑتی اسے گھور کر دیکھتی بولی تھی، سوری۔ افق کی بات سنتے وجدان نے کان پکڑتے ہوئے سوری کی تھی اور آگے بڑھتے اس کے منہ پر لگی ریت صاف کی تھی۔ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ریت کا محل بنانے سے فارغ ہوتی افق نے وجدان کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے کہا تھا، جس پر وجدان بس کھوئے کھوئے انداز میں اسے دیکھتا رہا تھا۔ محبت کے نام پر ریت کا محل بنایا تھا، جس کی میعاد صرف سمندر کی ایک تیز لہر تھی اور وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا اور پانی میں تحلیل ہو جاتا، پر افق تو وجدان کی محبت اور یہ محل بنا کر اتنی خوش ہوئی تھی کہ وہ وجدان اور آئمہ بیگم کی ساری باتیں یکسر ہی بھول گئی تھی۔ افق، خوش ہوتی افق ریت وجدان کی طرف اچھالتی ہوئی بھاگی تھی، جب وجدان حواس میں لوٹتا اسے دیکھ کے پیچھے بھاگا تھا۔ تو میری نیندوں میں سوتا ہے، تو میرے اشکوں میں روتا ہے، سرگوشی سی ہے خیالوں میں، تو نہ ہو پھر بھی تو ہوتا ہے صلہ تو میرے درد کا، میرے دل کی دعائیں۔ افق کے پیچھے بھاگتے وجدان نے اسے اپنے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے گول گول گھمایا تھا، جس پر خالی بیچ پر وجدان اور افق کے ہنسنے کی آواز گونجی تھی اور لہروں کے شور نے اس آواز کے ساتھ مل کر سر کا کام کیا تھا۔ تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں، مجھ کو بھاویں گلیاں تیری گلیاں، تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں، یوں ہی تڑپاویں تیری گلیاں۔ کیا میں آج مرنے والی ہوں وجدان؟ وجدان کی گود میں ہنستی مسکراتی افق کی آنکھوں میں اچانک سے نمی آئی تھی، جس پر وہ گردن موڑتی وجدان کی سرخ مسکراتی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، کیسے باتیں کر رہی ہو افق؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ افق کے سوال پر وجدان نے سہم کر اس کے نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، دل میں شک گزرا تھا جیسے افق سب جانتی ہو، تبھی وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، مذاق کر رہی تھی۔ وجدان کو پریشان ہوتے دیکھ افق نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی بات بدل گئی تھی، کیسا ہے رشتہ تیرا میرا، یہ چہرہ پھر بھی کتنا گہرا، یہ لمحے لمحے یہ ریشم سے کھو جائیں کھو نہ جائیں ہم سے، قافلہ وقت کا روک لیں اب دل سے جدا نہ ہونا، تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں، مجھ کو بھاویں گلیاں تیری گلیاں، تیری گلیاں تیری گلیاں تیری گلیاں، یوں ہی تڑپاویں گلیاں تیری گلیاں۔ چلے وجدان، اب اور نہیں، بس مجھے اس جھولے پر بیٹھنا ہے۔ وجدان کی سرخ آنکھوں میں نمایاں ہوتی نمی دیکھ کر افق نے آگے بڑھنا چاہا تھا، جب وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکا تھا اور محبت سے اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چھوتے ہوئے محسوس کیا تھا، جس پر افق نے پھر سے تکلیف سے مسکراتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں، تم وہاں نہیں بیٹھو گی، چلو واپس چلتے ہیں۔ افق کو جھولے پر بیٹھنے کے لیے بےتاب دیکھ کر وجدان نے اپنا ارادہ بدلتے افق کو وہاں سے چلنے کا کہا تھا، جب افق نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جب وجدان کا موبائل رنگ ہوا تھا کہ اسکرین پر بلنک ہوتے آئمہ بیگم کے نام کو دیکھتے ہوئے وجدان نے حیرانگی سے ایک نظر موبائل اور پھر ایک آخری بھرپور نظر افق کے کھلتے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم چلو جھولے تک، میں آتا ہوں۔ افق کی طرف دیکھتے وجدان نے خود پر ضبط کرتے ہوئے لمبا سانس بھرا تھا اور افق کو آگے بڑھنے کا کہتے وہ کال اٹینڈ کر گیا تھا، جس پر افق جو کچھ دیر پہلے وجدان کی بات پر خوش ہوئی تھی، پر اب اس کے ایک دم بدلنے پر تکلیف سے دیکھتی آگے بڑھی تھی۔ کہاں ہو وجی، تم نے اسے مارا نہیں؟ وجدان کی کال اٹینڈ کرنے پر بغیر کسی کی سنے
बगैर उसकी सुने आयमा बेगम ने जल्दी जल्दी पूछा था, जब पीछे मुड़ते वजदान ने मरे मरे कदमों से चलती उफक को देखा था। मॉम, अभी मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब से जब्त किए आंसू वजदान की आंखों से निकले थे, जिन्हें साफ करते वजदान ने अपनी बात कहते ही आयमा बेगम की कॉल काट दी थी कि कहीं वो उसकी नम आवाज न पहचान ले। हेलो भाई। उफो, क्या हुआ है, हम आ जाएं? उफक और वजदान के पीछे ही आदिल, आसिम, आतिफ और वहाज बीच से कुछ फासले पर ही रुके हुए थे कि उफक का फोन आने पर वहाज ने कॉल अटेंड करते हुए कहा था, भाई वो मुझे इसी समंदर में डुबा कर मारना चाहता है। तकलीफ से बहते आंसुओं के दरमियान उफक ने बमुश्किल कहा था, उफक गुड़िया, तुम उस झूले पर नहीं बैठोगी, हम आ रहे हैं। फोन स्पीकर पर होने की वजह से आतिफ ने उफक की बात सुनते फिक्रमंद लहजे में कहा था, जिस पर उफक नम आंखों से अपने भाइयों को अपने लिए फिक्रमंद होते देखकर मुस्कुराई थी। बैठूंगी भाई, पर आपको नहीं रोकूंगी, आए और अपनी बहन को बचा लें। मुझे जीना है भाई, अपने पापा, अपने भाइयों और अपने बच्चे के लिए, रोती हुई उफक ने लड़खड़ाते लहजे में कहा था, जिस पर आतिफ ने सुर्ख आंखों से उफक की बात पर नफी में गर्दन हिलाई थी। नहीं उफो, हम ये रिस्क नहीं लेंगे, तुम इस चूल्हे पर नहीं बैठोगी। नहीं भाई, मैं अब इस शख्स के लिए मरना चाहती हूँ और मुझे आप सब पर खुद से भी ज्यादा यकीन है कि आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। आप मेरे भाई हैं, वो भाई जो मेरी तकलीफ में मेरे साथ रो रहे हैं। उफक के लहजे में जिद देखते आसिम और आतिफ ने उसे रोका था, जब वो उन्हें प्यार से कहती रोई थी, और बस शायद यही इंतहा थी इन भाइयों की कि वो अपनी बहन के रोने में उसका साथ देने लगे थे। वो आ रहा है भाई। उफक रुक जाओ, तुम्हें हमारी कसम, पापा की कसम। वजदान को आते देख उफक फोन बंद कर गई थी, बगैर कोई बात सुने। आज अपनी सारी फोर्सेस को बुलाओ, मुझे मेरी बहन बिल्कुल सही सलामत चाहिए। आसिम, तुम चलो वहाँ। दिल, तुम वहाज के साथ पीछे से आओ। उफक के फोन बंद करने पर अपने आंसुओं को साफ करते हुए आतिफ ने सबको उनकी डायरेक्शन समझाई थी और खुद आसिम के साथ भागता हुआ दूसरी गाड़ी में बैठा था। जब वहाज ने भागते हुए आतिफ और आसिम को देखा था, हाँ वहां चलो, उफक को झूले की तरफ बढ़ते हुए देखकर वजदान उस तक आता, उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचकर दूसरी साइड पर ले गया था। ये क्या है? आज ना तो मेरी बर्थडे है, ना ही आपकी, तो फिर ये किस लिए? सामने टेबल पर रखे केक को देखकर उफक हैरान होती बोली थी, जिस पर वो उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया था। आज हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है उफक डार्लिंग। उफक के हाथ में नाइफ पकड़ाते वजदान ने उसके हाथ पर हाथ रखते उसके करीब होते हुए कहा था, जिस पर उफक वजदान के साथ गुजरे इस एक महीने की यादों में खोई थी, जो पलक झपकते गुजरी थी। वजदान, आपको पता है मुझे ये जगह बचपन से ही बहुत पसंद है और आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है। केक काटकर एक दूसरे को खिलाने से फारिग होता वजदान अपने चेहरे पर लगा केक साफ करने के लिए टेबल पर रखे टिश्यू से मुंह साफ करता वापस उफक के पास आया था। जब वजदान को अपने पास आते हुए देखकर अपना चेहरा साफ करती उफक खुशी से चहकती हुई उसका बाजू पकड़ती हुई बोली थी, जिस पर कुछ देर पहले रोने की वजह से सुर्ख हुई वजदान की आंखें फीका सा मुस्कुराई थी। जानते हैं क्या? पूछें। अपनी ख्वाहिश पूरी होने की खुशी में खोई उफक ने वजदान के बाजुओं में डाले हाथ पर जोर देते हुए पूछा था, क्या? मेरा मतलब कैसी ख्वाहिश? सोच के गहरे घड़े में खोए वजदान ने हाल में लौटते हुए उफक के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए पूछा था, यही कि मैं हमेशा से चाहती थी यहाँ इस बीच पर आना, पर मैं नहीं आई। पूछें क्यों? चलती हुई उफक ने अपने कदम रोकते हुए वजदान को अपने साथ रोक लिया था। जब तुम्हें ये जगह इतनी पसंद थी और तुम आना भी चाहती थी, तो क्यों नहीं आई? उफक की बात पर वजदान ने हैरान होते हुए पूछा था। इसलिए क्योंकि मैं यहाँ अपनी मोहब्बत, अपने महबूब और अपने महरम के साथ आना चाहती थी, और देखें मैं आज आ गई यहाँ अपने हर दिल अजीज शौहर के साथ। वो वजदान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत ढूंढती उसकी गर्दन में हाथ डालती झूम कर बोली थी। उसकी इस खूबसूरत इजहार मोहब्बत पर वजदान के 14 तबक रोशन हुए थे। इतना प्यार करती हो मुझसे? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। वजदान के खोए खोए लहजे में पूछे गए सवाल पर वो उसकी शर्ट के बटन से खेलती हुई बोली थी, मुझसे ज्यादा प्यार करती हो? वजदान ने उसकी छोटी सी नाक दबाते हुए पूछा था। मेरी नाक छोड़ें भी वजदान, आप मेरी नाक क्यों पकड़ते हैं? वजदान के नाक पकड़ने पर वो खफगी से बोली थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये छोटी सी नाक बहुत पसंद है और जब ये सुर्ख होती है तो और भी प्यारी लगती है, इतनी कि मेरा दिल चाहता है मैं खा जाऊं इसे। वजदान के नाक पकड़ने से सुर्ख हुई उफक की नाक से वो अपनी नाक रगड़ता हुआ शरारती हुआ था। वजदान प्लीज नहीं करें, मुझे तकलीफ होगी। वजदान के मुसलसल नाक दबाने पर वो नम आंखों से बोली थी, सॉरी, तुम्हें दर्द हो रहा है। उफक की नम आंखें देखकर वजदान परेशान हुआ था। नहीं, छोड़ें इसे, मैं कहाँ थी वो बताएं। वजदान के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया होते देख उफक ने बात बदलते हुए कहा था, तुमने कहाँ होना है, मेरी बाहों के हिसार में हो तुम। उफक की बात पर वजदान ने मुस्कुराते हुए उसे सीने से लगाते बाजुओं का घेरा तंग किया था, लेकिन कब तक यहाँ रहने वाली हूँ मैं?
वो नम आंखें जोर से बंद करती हुई बोली थी। वजदान की इतनी मोहब्बत पर न जाने क्यों आज बार बार उफक की आंखें नम हो रही थी। क्या मतलब? कब तक तुम यहाँ रहने वाली हो? मेरे दिल में धड़कन बनकर और मेरे वजूद में लहू बनकर हमेशा रहोगी। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है उफक। उफक की बात पर वजदान सिटपटाया था और वो जल्दी ही खुद को कंपोज करता हो उफक के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरता मोहब्बत से चुर लहजे में बोला था, वजदान वहाँ चले, मुझे उस झूले पर बैठना है। समंदर की लहरों की सतह पर बंधे झूले की तरफ इशारा करती उफक ने वजदान का हाथ पकड़ते हुए चलने का कहा था। बाद में, पहले कुछ खा लें फिर। उफक के झूले की तरफ इशारा करने पर वजदान की पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आज मैं सिर्फ आपको कहना और सुनना चाहती हूँ वजदान। वजदान के फक होते चेहरे को देखकर उफक बजिद हुई थी। नहीं, तुमने कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा लो। क्या वजदान, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने आज कुछ ना खाया तो कभी नहीं खा सकूंगी। वजदान के परेशान चेहरे को देखकर वो खुद पर जब्त करती तहम्मुल से लफ्जों का चुनाव करती बोली थी, कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं खाना तो कोई बात नहीं। उफक के अपनी तरफ देखने पर वजदान ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा था, चलें फिर। वो वजदान का हाथ खींचती हुई उसे आगे बढ़ी थी। क्यों इतनी जल्दी कर रही हो उफक? अभी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, प्लीज कुछ देर और रुक जाओ ना। उफक के साथ चलते वजदान ने आसमान की तरफ नजर उठाते हुए दिल में कहा था, आज पता तो चले मेरी मोहब्बत सच्ची है या फिर आपकी मॉम की। आगे चलती उफक ने अपने आंसू साफ करते हुए सोचा था, वजदान मुझे कुछ कहना है आपको। झूला झूलती उफक ने पीछे मुड़कर वजदान को देखते हुए कहा था, कहो क्या कहना है। उफक के देखने पर नम आंखों से मुस्कुराने की कोशिश करते वजदान ने कहा था, ये डूबता हुआ सूरज मानो जैसे किसी प्यार करने वाले का दिल डूब रहा हो, कि शोर करती लहरें जैसे कुछ कहना चाह रही हो कि जो हो रहा है वो भी और जो होने वाला है वो भी सब गलत है। वैसे ये जगह बहुत प्यारी है पर माहौल कितना खौफनाक है ना। मोहब्बत के जज्बात में खोई खोई उफक ने बहते आंसुओं के दरमियान खुद पर जब्त के कड़े पहरे लगाते हुए बगैर वजदान की तरफ मुड़ने की गलती किए वो इसे जैसे हर बात से आशना होने का पता दे रही थी। खौफनाक मतलब? उफक के खौफनाक लफ्ज पर जोर देता अपने आंसू पीता बोला था, सारी बात अनसुनी कर गया था। मजाक कर रही हूँ, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, इतनी कि मैं कभी भुला नहीं सकती। मतलब था मेरे शौहर ने मेरे लिए ये बीच बिल्कुल खाली रखवाया ताकि मैं खूब मस्ती कर सकूं। एक तुम पे ही निसार होना था हमें, हम अगर बेशुमार भी होते तो। अपने आंसुओं को पीती उफक ने मोहब्बत भरी नजरों से वजदान की तरफ देखते हुए कहा था, जिस पर वो मुस्कुरा भी नहीं सका था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आज आखिरी बार आपके साथ हूँ वजदान। वो अपने दर्द से कुरलाती दिल पर हाथ रखती हुई खुद को खुश जाहिर कर रही थी और बार बार वजदान को वो करने से रोकना चाहती थी जो वो करने वाला था। अगर आज वो ये कर गुजरता तो सिर्फ वो ही नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाली हर वो लड़की, हर वो बीवी टूट जाएगी जो अपने शोहरों को अपना सब कुछ मान लेती हैं। आज अगर मुझे मौत भी लेने आई तो वो वापस लौट जाएगी, क्योंकि मेरे साथ आप हैं वजदान, और मुझे पता है आपके होते हुए मेरा मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वजदान की खामोशी उसे और कमजोर और तकलीफ में मुब्तला कर रही थी। इसी तकलीफ और बेबसी में रोती उफक ने एक और छोटी सी कोशिश की थी अपने महबूब शोहर को ये बताने की कि वो इस पर खुद से कितना ज्यादा एतबार करती है। आई लव यू वजदान, तू मेरी वफा का अरूज है, मेरा इश्क तुझ पे तमाम शुद्ध। चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाती उफक ने मुड़कर वजदान की तरफ देखते हुए कहा था, जो उफक की बातों पर खामोशी से सर झुकाए रो रहा था। थोड़ा तेज झूला दे वजदान। वजदान की सुर्ख आंखों से आंसू जारी थे, जिन्हें देखकर नजरअंदाज करती उफक ने रुख मोड़ते हुए उसके लिए आसान राह चुनी थी। उफक, आई लव यू उफक, आई लव यू फॉर एवर उफक। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे बाद किसी की गुंजाइश बाकी नहीं। मैं तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता हूँ। मैं आज मजबूर हूँ, लेकिन एक बात कहूँ उफक, मुझे अगले जहां में भी तुम्हारा साथ चाहिए और वहाँ मैं वो सब करूंगा जो इस जहां में नहीं कर सका। उफक की बात पर अपने आंसू साफ करते वजदान ने जज्बात से बोझल लहजे में कहते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, पर मुकाबिल तो शायद आज किसी और ही चीज के इंतजार में बैठी थी। तभी तो आज उसने वजदान के इस मोहब्बत भरे इजहार का कोई जवाब न दिया था। इतनी शिद्दत से न कर तरके ताल्लुक का सवाल, ये ना हो मुझसे तेरी बात न टाली जाए, कुछ बोलोगी नहीं क्या? न जाने क्यों उफक की खामोशी उसे खल रही थी। वो उसकी मीठी आवाज सुनना चाहता था। कुछ तो बोलो यार, एक बार आवाज दे दो मुझे। नहीं, आवाज नहीं दूंगी। अब आप लौट नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लौटे भी तो मैं नहीं लौटने वाली वजदान। वजदान के बार बार इसरार करने पर उफक ने वजदान को देखे बगैर ही कहा था, जोर से धक्का दे वजदान, अब मैं और नहीं झेल सकती ये तकलीफ। उफक के आंसुओं में रवानगी आई थी और अपनी हिचकियों का गला घोंटती उफक ने झूले की जंजीर पर की गिरफ्त ढीली छोड़ते उसे जोर से झूला देने का कहा था। आई लव यू उफक। उफक के कहे पर अमल करते वजदान ने आंखों को जोर से बंद करते हुए झूले को धक्का दिया था कि हवा में उड़ती हुई उफक की खौफनाक चीख
सुनसान समंदर की लहरों में गूंजी थी और वही उसकी आवाज सुनकर उसके भाई सब अपनी अपनी जगह पर साकत हुए थे। उफक खाली झूले को लौटते देख विजदान दुख सदमे से चिल्लाता घुटनों के बल गिरा था। कुछ ही देर में एक तेज लहर आई थी जो उफक और उसके बनाए रेत के महल को अपने साथ बहाकर ले गई थी। उफक, क्या कर दिया मैंने? उसके बगैर नहीं जी सकता। 10 मिनट से रोते विजदान को उफक खुद से दूर जाते महसूस हुई थी। जब वो बेखुदी में उठता समंदर की तरफ भागा था, जब किसी के चीखने और पानी के तेज आवाज में छलकने का सुनकर बीच पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस वहां आई थी, जो विजदान को समंदर की तरफ बढ़ते देखकर उसे बमुश्किल काबू करने लगी थी। उफक, मुझे छोड़ो। उफक, सर संभालें। विजदान को मुश्किलों से पकड़े सिक्योरिटी एहलकार ने उसे रोकते हुए कहा था। मेरी बीवी। हेलो शावी। विजदान, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उफक ठीक है। गार्ड से खुद को छुड़ाते विजदान ने ख्याल आने पर शावेज को कॉल की थी, जो पहले ही बेल पर रिसीव कर ली गई थी। जब विजदान की टूटे फूटे लहजे में पुकारने पर शावेज परेशान हुआ था, क्योंकि उफक और विजदान की ऑस्ट्रेलिया में मौजूदगी से शावेज बखूबी वाकिफ था। तभी वो विजदान और उफक के लिए परेशान हुआ था। शावी, मेरी मदद करो। उफक। उफक चली गई। मैंने। विजदान, क्या? उफक। हेलो हेलो। विजदान। शावेज को मदद के लिए पुकारते हुए विजदान ने समुद्र के शफाफ पानी में सुर्ख रंग खुलते हुए देखकर चिल्लाया था कि फोन की दूसरी जानिब मौजूद शावेज उसके चिल्लाने पर परेशानी से गोया हुआ था, पर विजदान तो शायद किसी की सुन ही नहीं रहा था। 3 माह बाद विजदान, कब तक तुम्हारा शौक मनाने का इरादा है? अब वो वापस नहीं आएगी। भूल जाओ उसे और अपने बाप को संभाल लो, जो तुम्हें ऐसे देखकर टूट रहा है। रात के 2 बजे घर लौटते विजदान के इंतजार में बैठे वहाब साहब ने उसकी बिखरी हालत देखते हुए कहा था। ब्लू शर्ट के गिरेबान खोले बटन, बिखरे बड़े बड़े बाल, आंखों के नीचे स्याह हल्के, भड़ी हुई ब्रेड जो पिछले 3 माह में इतनी बढ़ गई थी कि अरहम भी उसे देखकर डरने लगा था, जो पिछले 3 माह से ऐसे ही रातों को देर गए घर लौटता अपने और वहाब साहब के साथ खेल रहा था। तभी वो उसे सीढ़ियां चढ़ते देखकर बोले थे, सारी जिंदगी ये शौक मनाने वाला हूँ मैं डैड। उफक के जिक्र पर विजदान की सुर्ख आंखों में नमी आई थी कि वो वहाब साहब के तरफ मुड़ता कंधे झुकाते किसी हारे हुए जुआरी की तरह बोला था, जो जुए में अपनी जिंदगी में अपनी खुशियां सब हार चुका हो। न जाने क्यों डैड, मेरा दिल कहता है वो मुझसे दूर तो है पर पास भी है। अगर मुझे उसकी लाश मिल जाती तो शायद ये दर्द कम हो जाता डैड, पर अब तो ये दर्द, ये तकलीफ लगता है मेरे साथ ही खत्म होगी। वहाब साहब की तरफ देखते विजदान ने रोते हुए कहा था और वही सीढ़ियों पर बैठ गया था, जबकि अपने कुड़ेल जवान बेटे को ऐसे रोता देखकर वहाब साहब कमजोर हुए थे। पिछले 3 माह से अपना और सोहराब साहब का मुश्तरका बिजनेस वहाब साहब अकेले संभाल रहे थे, क्योंकि उफक की डेथ के बाद सोहराब साहब और उनके बेटे अपना सब कुछ छोड़कर हैदराबाद अपनी आबाई हवेली शिफ्ट हो गए थे। किससे उम्मीद कर रहे हैं वहाब? आपके इस मजनू से? अगर आज हमारी कोई और औलाद होती तो वो आपको और दोनों को संभाल लेती। एक बेटा तो आपको पहले ही छोड़कर चला गया और दूसरा तो किसी काम का ही नहीं रहा। सोती हुई आयमा बेगम की आवाज विजदान और वहाब साहब की आवाज पर खुली थी, जिस पर नीचे आती आयमा बेगम ने एक तनफर भरी नजर विजदान पर डाली थी और वहाब साहब के पास आकर खड़ी हुई थी, जब विजदान ने तकलीफ से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की थी, जबकि वहाब साहब आयमा बेगम की बात पर जब्त से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर गए थे। उफक को मारकर लौटता विजदान जब घर आया तो सामने आयमा बेगम को नक्शा तैयार देखकर हैरान हुआ था। जब दरवाजे पर खड़े विजदान को देखकर वो उस तक आई थी और आते ही उसे खुश होते गले से लगाया था, जबकि विजदान तो इन्हें खुश देखकर और भी ज्यादा अफसरदा हुआ था। खुद को मां कहने वाली आयमा बेगम अपने बेटे की तकलीफ तक को न जान सकी थी, जिस पर विजदान को जिंदगी में पहली बार अपने लिए उनकी मोहब्बत में खोट नजर आई थी। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है विजदान, तुम तो वाकई में अपने नाम के एक निकले। तुमने अपना कहा पूरा कर दिया और मेरे दिल को तस्कीन पहुंचा दी तुमने। विजदान की बिखरी हालत देखकर मुस्कुराती आयमा बेगम ने अपने मकसद में कामयाब होने की खुशी जाहिर की थी। वो जो सिर्फ उफक के मरने पर ही खुश नहीं थी, वो आज विजदान को टूटे हुए देखकर भी खुश थी। जिंदगी में हमेशा इसी वक्त के इंतजार में थी जब विजदान टूटी बिखरी हालत में उनके सामने होगा और वहाब साहब को उसे अपना बेटा कहते अफसोस होगा। आज वो दिन भी आ गया था। तभी वो एकदम से बोली थी, आज अगर मेरी अपनी कोई और औलाद होती तो उसे मेरा भी ख्याल होता और आपका भी। वहाब, इन दोनों भाइयों को तो अपने सिवा किसी का ख्याल नहीं है। विजदान को देखकर नफरत से रुख मोड़ती आयमा बेगम ने वहाब साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, जिस पर विजदान एक तकलीफ दे नजर इन पर डालता हुआ खड़ा हुआ था और अपने कमरे की तरफ चला गया था। बकवास बंद करो अपनी आयमा। विजदान को जाते देख वहाब साहब आयमा बेगम का हाथ दूर झटकते हुए विजदान के पीछे गए थे, जब उसकी आंखों में इन्हें आज 3 महीने बाद कुछ ऐसा दिखाई दिया था जो उन्हें पुकार रहा था। विजदान। विजदान कमरे में आते वहाब साहब ने अंधेरा होने की वजह से उसे पुकारा था। जब लाइट जलाने पर उन्हें विजदान काउच की
बैग से टेक लगाए रोता हुआ दिखाई दिया था। डैड, वहाब साहब को देखकर वो आंसुओं के दरमियान मुस्कुराया था, जैसे इसे पता था कि उसका डैड उसके पास आएगा, और वो पूरा था। वजी, डैड, वजदान की तकलीफ पर वहाब साहब की आंखें नम हुई थी। तभी वहाब साहब ने आगे बढ़ते उसे गले लगाया था। उनकी इस शफकत की ही उसे जरूरत थी। वो आज 3 महीनों में पहली बार उनके गले लगकर फूट फूट कर रोया था। साथ ही वहाब साहब को भी रोने पर मजबूर कर गया था। क्या हुआ था वजदान उफक के साथ, आज बता दो। वजदान के आंसू साफ करते हुए वहाब साहब ने पूछा था, जिस पर वो चुप हुआ था। आज मेरे बेटों पर किसी ने सवाल उठाया है वजी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज अपने डैड को तो बताओ। आयमा बेगम की बातें याद करते वहाब साहब ने वजदान को देखते हुए उसे सब बताने पर फोर्स किया था। डैड, मुझसे गलती हो गई, ये कह लें गुनाह कर बैठा हूँ। क्या कह रहे हो वजी, खुलकर कहो। वजदान की बातों को समझने की कोशिश करते वहाब साहब ने उसे साफ साफ बात करने का कहा था। डैड, वो मॉम जो आज ये कह रही हैं, मैं ना इनके काबिल रहा ना आपके। मैंने उनसे अपनी मोहब्बत, उनकी ममता का कर्ज अदा किया। उनके लिए मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। उनके एक कहने पर एक मासूम की जिंदगी से खेला, उसे पल पल तड़पाया मैंने। उसके साथ साथ मैं खुद तड़पा। डैड, उनके लिए मैंने अपनी मोहब्बत खत्म कर दी। डैड, मैंने अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी उफक को खुद अपने गंदे हाथों से मार डाला। डैड, वो पानी में गिरी नहीं थी, मैंने उसे गिराया था। मैंने उसे मारा डैड, मैंने। वहाब साहब की बात मानते वजदान ने आज 3 माह बाद अपने दिल दिमाग की जंग से लड़ते लड़ते जो थक गया था कि आयमा बेगम के लफ्जों के निश्तर सह नहीं पाया था, तभी वहाब साहब को देखता उन्हें सब बता गया था। जिस पर वजदान की बात सुनते वहाब साहब दुख से उसे देखने लगे थे, जो हिज़यानी अंदाज में कहता रोने लगा था। वजी नहीं। वजदान के रोने में रवानगी आते देखकर वहाब साहब ने उसे सीने से लगाया था। उसे बच्चों की तरह इस दुनिया से सबसे छुपा लेना चाहते थे। वहाब, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तुमने मेरे बेटों का ख्याल नहीं रखा। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तुमने शादी कर ली और मेरे बच्चों को रुला दिया। उस औरत के लिए वहाब, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वजदान को सीने से लगाते वहाब साहब को हर रोज रात को ख्वाब आता याद आया था, जिस पर वो वजदान के साथ रोने लगे थे। 2.5 साल बाद वजदान हाशमी, ये तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? वो इस वक्त रात के 3 बजे वजदान की आती कॉल देखकर वहाज के साथ बैठे आसिम ने पूछा था। याद आ गया होगा मेरे सो कॉल्ड सीनियर को कोई अर्जेंट काम। स्क्रीन पर वजदान का नाम ब्लिंक होते देखकर वहाज का हलक तक कड़वा हुआ था। 3 माह बाद जब वहाब साहब के लाख समझाने के बाद वजदान अगली सुबह अपनी उजाड़ हालत संवारता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था, तो वहाब साहब तो उसे वापस से जिंदगी की तरफ लौटता देखकर खुश हुए थे, जबकि आयमा बेगम वजदान को ब्लैक पैंट कोट में मलबूस बालों को सेट किए वापस से अपनी जोन में आता देखकर शॉक्ड हुई थी। वो जो समझी थी कि अब वजदान सारी जिंदगी उफक की यादों में रहकर खुद को बर्बाद कर देगा, जिससे उनका सोहराब चौहान के साथ साथ वहाब साहब से भी बदला पूरा हो जाएगा, पर वजदान को इतनी जल्दी आगे बढ़ता देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। तभी वो गुस्से से लाल होती डाइनिंग टेबल से उठती वहां से चली गई थी, जब वजदान एक खामोश नजर उन्हें जाते देखकर तकलीफ से मुस्कुराया था। ऑफिस पहुंचने पर जब उसकी मुलाकात उसके जूनियर से हुई थी, जिसे उसे असिस्ट करना था, मेजर बारी के कहने पर जब नाखुश बैठे वजदान ने नजर उठाकर सामने देखा तो अपने सामने खड़े वहाज को देखकर वो हैरान हुआ था। यही हाल कुछ वहाज का भी था, जो अपनी बहन के मुजरिम को अपने सामने अपने सीनियर के रूप में देखकर खुद पर से कंट्रोल खोने लगा था, पर वो खुद पर जब्त करता अपने लब भींच गया था। जबकि वजदान को पिछले 3 माह पहले हुए वाकये के बाद हुआ सब कुछ याद आया था। कहाँ है मेरी बेटी वजदान हाशमी? मेरी बेटी कहाँ है? बताओ मुझे। जब वो ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटा तो वो सोहराब साहब से मिलने के लिए उनके घर गया था, जो उफक के मरने की खबर सुनकर सदमे में थे, पर अपने सामने खड़े वजदान को देखकर वो एकदम गुस्से से उठते, वजदान को जोरदार थप्पड़ रसीद करते, उसका गिरेबान पकड़ते गुस्से से चिल्लाए थे, पापा संभालें खुद को, इसे तो मैं देख लूंगा। कहाँ है मेरी बहन? वजदान, तुम तो उसे अपने साथ लेकर गए थे, तो तुम अकेले क्यों आए हो? सोहराब साहब की बिगड़ती हालत देख आतिफ ने उन्हें साइड करके वजदान का गिरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ा था, जिस पर वजदान की सुर्ख आंखों से नदामत के आंसू निकले थे। ये ऐसे नहीं बोलेगा भाई। आतिफ के पीछे से आते वहाज ने एक जोरदार तमाचा वजदान को मारा था, जिस पर वजदान के साथ आए वहाब साहब आगे बढ़े थे। वहाज, छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो तुम? वहाज को वजदान पर एक के बाद एक तमाचा मारते हुए देखकर वहाब साहब ने आगे बढ़ते उसे रोका था, जबकि इस सब के बरक्स वजदान पशेमानी से सर झुकाए हुए था।
چھوڑ دیں اسے انکل، یہ ہماری بہن کا خیال نہیں رکھ سکا تو وعدے کیوں کیے تھے اس نے؟ وہاب صاحب کو ان کے بیچ میں آتا دیکھ کر عادل آگے آتا انہیں دیکھ کر اپنے غصے پر ضبط کرتا بولا تھا، تم نے ہماری بہن کو مار دیا وجدان ہاشمی۔ وجدان کو خاموشی سے گردن جھکائے دیکھ عاصم نے اسے پیچھے سے دھکا دیا تھا۔ یہ الزام ہے عاصم، وجی نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم خود دیکھو اس کی حالت، وہ بھلا کر سکتا ہے ایسا؟ عاصم کے الزام پر جہاں وجدان نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھی، وہیں وہاب صاحب نے آگے بڑھتے وجدان کی طرفداری کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہاں موجود سب لوگ تعصب سے گردن ہلاتے نم